عزیز طالب علموں، عضوے کس طرح تولید کرتے ہیں، اس کے تیسرے ویڈیو میں ہم انسانوں میں تولید کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ انسانوں میں تولید یا ریپروڈکشن ان ہیومن بینگز۔ انسانوں میں صنفی تولید ہوتی ہے۔ تولیدی عمل کے لیے مخصوص اعضاء اور بافتیں فروغ پاتے ہیں۔ انسانوں کے جسم میں جسمانی نمو کے ساتھ ساتھ جسمانی خد و خال میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ نئی خصوصیات اور احساسات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سن بلوغ یا پیوبرٹی۔ انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کی عام نمو کی شرح سست ہونے لگتی ہے۔ تولیدی بافت پختہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ عمر سن بلوغ کہلاتی ہے۔ اس دوران لڑکے اور لڑکیوں کے جسم میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ سن بلوغ کے دوران لڑکوں میں ہونے والی تبدیلیاں بغل اور ناف، زیر ناف بال اگنا، اعضاء کا رنگ گہرا ہونا، ہاتھ پاؤں اور چہرے پر باریک روئیں نکل آتے ہیں، جلد چکنی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مہاسے بھی نکل آتے ہیں، چہرے پر داڑھی مونچھیں نکل آتی ہیں، آواز بھاری ہونے لگتی ہے، رات یا دن کے وقت خواب کی حالت میں قضیب سخت اور لمبا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سن بلوغ کے دوران لڑکیوں میں ہونے والی تبدیلیاں، لڑکیوں میں بھی بغل اور زیر ناف بال اگنا، اعضاء کا رنگ گہرا ہونا، ہاتھ پاؤں اور چہرے پر باریک باریک روئیں نکل آتے ہیں، جلد چکنی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مہاسے بھی نکل آتے ہیں۔ لڑکیوں میں پستانوں کے سائز میں اضافہ ہونے لگتا ہے، پستانوں کے سروں کا رنگ گہرا ہونے لگتا ہے۔ اس دوران لڑکیوں میں حیض کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نر تولیدی نظام۔ انسانوں میں تولیدی خلیوں کو پیدا کرنے والے حصے اور تولیدی خلیوں کو باراوری کے مقام تک لے جانے والے اعضاء مل کر نر تولیدی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ نر تولیدی نظام درج ذیل اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسیے، ٹیسٹیز۔ انسیے شکمی جوف کے باہر انسیہ تھیلی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان میں تولیدی خلیوں یا اسپرم کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ جسم کے باہر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اسپرم پیدا کرنے کے لیے درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت سے کم درکار ہوتا ہے۔ انسیے میں پیدا ہونے والا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اسپرم کی تشکیل اور لڑکوں میں سن بلوغ کے وقت ہونے والی تبدیلیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ واس ڈفرینس۔ یہ نالی انسیوں میں پیدا ہونے والے اسپرم کو مبال تک پہنچاتی ہے۔ مبال یا یوریتھیرا۔ یہ نالی اسپرم اور پیشاب خارج ہونے کا مشترکہ راستہ ہے۔ پروسٹیٹ غدود اور سیمینل ویزائیکل۔ پروسٹیٹ غدود اور سیمینل ویزائیکل اپنے افراز کو واس ڈفرینس میں خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسپرم سیالی میڈیم میں آ جاتے ہیں اور اسپرم کا نقل و حمل آسان ہو جاتا ہے اور اسپرم کو تغذیہ بھی فراہم ہوتا ہے۔ اسپرم بہت چھوٹی ساختیں ہیں جن میں جینیاتی مادہ اور ایک لمبی دم ہوتی ہے جو مادہ تولیدی خلیوں کی طرف تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان میں مادہ تولیدی نظام۔ مادہ تولیدی نظام مندرجہ ذیل اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیضدان یا اووریز۔ بیضدان شکم میں دونوں جانب دو پائے جاتے ہیں۔ ان میں بیضوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ لڑکی کی پیدائش سے ہی بیضدان میں ہزاروں خام بیضے موجود ہوتے ہیں۔ سن بلوغ میں پہنچنے پر ان میں سے کچھ بیضوں میں پختگی آنے لگتی ہے۔ ہر ماہ ایک بیضدان سے ایک بیضہ پیدا ہوتا ہے۔ بیض نالیاں، فیلوپین ٹیوب۔ بیضدان میں ہر ماہ پختہ ہونے والا بیضہ فیلوپین ٹیوب کے ذریعے رحم میں لایا جاتا ہے۔ رحم یا یوٹرس۔ دونوں بیض نالیاں متحد ہو کر ایک لچکدار تھیلے نما ساخت کی تشکیل کرتی ہیں جسے رحم کہتے ہیں۔ رحم سروکس کے ذریعے فرج میں کھلتا ہے۔ انسان میں جنسی اختلاط یا باراوری کے بعد ہونے والی تبدیلیاں۔ اسپرم مادہ کے جسم میں داخل ہو کر اوپر سفر کر کے بیض نالی تک پہنچ جاتے ہیں۔
जहाँ ये बैज़े से मिलकर ज़ाइगोट या बारावर बैज़ा बनता है, जो तकसीम होकर खुलियों की गेंद जैसी साख्त बन जाती है, जिसे अब जिनेन कहते हैं। जिनेन रहम की अंदरूनी दीवारों पर नस्ब हो जाता है। जिनेन यहाँ मुखलिका बनने तक मुसलसल तौर पर नशोनुमा पाता है। जिनेन की परवरिश। माँ का जिस्म बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही मौजू है। जिनेन को माँ के खून से तग़ज़िया हासिल होता है, जो एक मखसूस बाफ प्लेसेंटा के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। प्लेसेंटा एक डिस्क जैसी साख्त होती है, जो रहम की दीवारों में पेवस्त रहती है। इसमें जिनेन की तरफ विल्लई उभार मौजूद होते हैं, जो माँ की तरफ दमुवी जगहें या ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उभारों को घेरे रहती हैं। ये माँ से जिनेन के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और दीगर मादों की फराहमी के लिए रकबा फराहम करती हैं। जिनेन से पैदा शुदा फुजला भी प्लेसेंटा के ज़रिए माँ के खून में मुंतकिल करके निकाला जाता है। जब इंसानों बैज़े की बारावरी नहीं होती तो क्या होता है? बैज़दान हर महीने एक बैज़ा खारिज करता है, जो एक दिन जिंदा रहता है। इसके लिए रहम हर महीने तैयारी करता है। रहम का अस्तर मोटा और स्पंजी हो जाता है, लेकिन जब बारावरी ना होने की सूरत में ये अस्तर आहिस्ता आहिस्ता टूटकर फुरुज के ज़रिए खून और मखात की शक्ल में खारिज होता है। ये दौर एक माह में मुकम्मल होता है। इसे हैज़ कहते हैं। हैज़ 2 से 8 यौम तक चलता है। इंसानों में तौलीदी सेहत या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कभी कभी जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी की वजह से जिनसी इख्तिलात से सेहत पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। जिनसी इख्तिलात से कई बीमारियों की तरसील भी होती है। मिसाल के तौर पर जिनसी इख्तिलात के ज़रिए बैक्टीरिया से होने वाली जिनसी बीमारियाँ, सुज़ाक या गोनोरिया, आतिशक या सिफिलिस। वायरस से होने वाली जिनसी बीमारियां मस्से या वार्ड, HIV से एड्स। इन बीमारियों से बचने के लिए और उनकी तरसील को रोकने के लिए कंडम का इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों में चंद वजूहात की बिना पर हमल को रोकने के भी कई तरीक़े अपनाए जाते हैं। माने हमल को रोकने के तरीक़े हैं: तौलीद के ज़रिए आबादी में इजाफ़ा होता है। बढ़ती आबादी की वजह से हर एक फ़र्द के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना मुश्किल होता है। इसलिए बढ़ती आबादी को कम करने के लिए, मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, एड्स जैसी बीमारियों को रोकने के लिए, जिनसी इख्तिलात से सेहत और तंदुरुस्ती पर पड़ने वाले असरात से बचाव के लिए और तरसीली बीमारियों से बचाव के लिए माने हमल के तरीक़े अपनाए जाते हैं। माने हमल के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। मैकानिकी रुकावट। इस तरीक़े में तनासुली अज़ो पर कंडोम या फ्रूज में इसी किस्म का कोई गिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्पर्म बैज़े तक ना पहुँच पाए और बारावरी ना हो। नंबर 2, कीमियाई तरीक़ा। इस तरीक़े में हार्मोन के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया जाता है, ताकि बैज़ा खारिज ना हो सके और बारावरी का अमल ना होने पाए। इसके लिए गोलियों की शक्ल में दवाएं भी दी जाती हैं। IUCD। हमल रोकने के लिए कुछ दूसरे माने हमल के आलात, मसलन लूप, कॉपर टी को रहम में रख दिया जाता है। चौथा तरीक़ा है सर्जिकल तरीक़ा। इस तरीक़े से मर्द के वास डिफरेंस में सर्जरी या ऑपरेशन से रुकावट पैदा कर दी जाती है और औरत के फ़लोपियन ट्यूब में सर्जरी से रुकावट पैदा कर दी जाती है। इससे स्पर्म और बैज़ा रहम में नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन या बारावरी नहीं होती। अहम नोट है, तौलीद एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपनी आबादी में इजाफा करते हैं। किसी आबादी का साइज़, शरह पैदाइश, शरह अमवात पर मुतय्यन है। बहुत ज़्यादा आबादी भी तशवीशनाक है, क्योंकि मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं होता। समाज में चंद जगहों पर अदम मसावत की वजह से, खुसूसी जिन्स या मादा जिनीन कशी की वजह से भी जिनसी तनासब में फ़र्क आ रहा है, जो तशवीशनाक है। इस यूनिट के अहम सवालात। सवाल नंबर 1, सने बलूग से क्या मुराद है?
सवाल नंबर 2, सने बलूग के वक्त लड़के व लड़कियों में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। सवाल नंबर 3, नर तौलीदी निज़ाम के आज़ा के नाम लिखकर अफ़ाल लिखिए। सवाल नंबर 4, स्पर्म की साख्त बयान कीजिए। सवाल नंबर 5, सेमिनल वेज़ाइकल और प्रोस्टेट गुदूद का क्या काम है। सवाल नंबर 6, इंसानी मादा तौलीदी आज़ा के नाम लिखिए। सवाल नंबर 7, माँ के जिस्म में जिनेन तग़ज़िया किस तरह हासिल करता है। सवाल नंबर 7, हैज़ का सबब बयान कीजिए। सवाल नंबर 9, जिनसी तौर पर तरसील होने वाली चंद बीमारियों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 10, अगर कोई औरत कॉपर टी इस्तेमाल कर रही है तो क्या ये जिनसी तौर पर तरसील होने वाली बीमारियों से हिफाजत करेगी। सवाल नंबर 11, माने हमल के मुख्तलिफ तरीक़े क्या हैं। सवाल नंबर 12, माने हमल तरीक़ों को इख्तियार करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। सवाल नंबर 13, इंसानों में अंसियों के अफ़ाल बयान कीजिए। सवाल नंबर 14, अंसिये शिकमी जौफ के बाहर क्यों होते हैं। इन सवालात के जवाब आप दिए गए नोट्स और किताब की मदद से लिख सकते हैं। शुक्रिया।